Good morning, students. Today we are going to study about consumers equilibrium by using indifference curve analysis. In my previous class, I taught you consumers equilibrium by using utility analysis. In utility analysis, you have studied that a consumer is in equilibrium when the ratio of marginal utility of a good to its price becomes equal to utility of money. Alternatively, we can say that a consumer is in equilibrium when marginal utility of a good in terms of money becomes equal to the price. So we have studied two ways to determine consumer's equilibrium in utility analysis. In utility analysis, we can determine consumer's equilibrium in case of single commodity and in case of two commodities. Utility analysis is also known as cardinal approach, because in utility analysis we assume that utility can be measured in terms of numbers and the unit is utils. So there were some shortcomings of this method. Then we further move on to the next step, and it was indifference curve analysis. In indifference curve analysis, we can determine consumer's equilibrium for two commodities. Now, in order to find out consumer's equilibrium by using indifference curve analysis, we require certain terms. One is bundles. Number two, budget line and budget set. Number three, monotonic differences. And number four, indifference curve. So we are going to study about this, and you are required to know marginal rate of substitution between two goods. We require these five things to understand consumers equilibrium by using indifference curve analysis. सबसे पहले what is bundles? Bundles क्या है? Bundles का मतलब है any combination of two goods. यानी दो goods में suppose you are having two goods, good X and good Y. Good X की कुछ quantity आपने ली, good Y की कुछ quantity ली, और दोनों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन तैयार किया, दैट इज नोन एज बंडल्स. सिंपली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बजट लाइन, लाइक विल स्टार्ट विद द बजट लाइन. एक कंज्यूमर की जो इनकम है दैट इज बजट कॉन्स्ट्रेंट, वो उतना ही खर्च कर सकता है. तो अगर आपको दो गुड्स हैं, उनके प्राइस दिए हों और कंज्यूमर्स की इनकम दी हो, यू कैन डिटरमाइन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड वाई अ कंज्यूमर कैन बाय बाय स्पेंडिंग ऑल हिज इनकम. So let's start. Suppose there are two goods, good X and good Y. The prices of two goods are given as Px and Py per unit. एक यूनिट जो गुड X है उसका प्राइस है Px, और एक यूनिट जो गुड Y की है उसका यूनिट है Py, उसका प्राइस है Py. Income of the consumer can be represented by M. Income को हम M से represent करेंगे. And consumer can buy different quantities of good X that can be represented by Qx, and good Y, the quantity can be represented by Qy. अब suppose दो गुड्स के प्राइस हैं Px and Py, दो गुड्स की क्वांटिटी भी है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Qx and Qy. इट इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज गिवन, ये भी गिवन है, दिस इज आल्सो गिवन, ये हमें दिए हुए हैं. क्वांटिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी को बाय करेंगे टू बी डिटरमाइन. ये मैं फाइंड आउट कर लूंगी. एंड आपको मालूम है कि आपके पास अगर इनकम फिक्स है
और आप किसी एक गुड की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो दूसरे गुड की क्वांटिटी आपको कम करनी ही पड़ेगी। दैट इज नोन एज क्वांटिटी। Qx and Qy we have written to be determined. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। Then we know, if I ask you कि एक गुड पर कंज्यूमर कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? If I ask you कि एक गुड पर एक कंज्यूमर कितना पैसा खर्च करता है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे कि उस गुड का प्राइस क्या है और कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर इज बाइंग। तो ये आ गया एक्सपेंडिचर ऑन वन गुड, एक्सपेंडिचर ऑन गुड एक्स, वन गुड दैट इज गुड एक्स इन आवर केस। मैं पूछूं गुड वाई पर कंज्यूमर कितना पैसा खर्च करेगा, तो प्राइस ऑफ गुड वाई इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, तो जितना गुड वाई का प्राइस है वो और जितनी क्वांटिटी गुड वाई की बाई कर रहा है वो। अगर हम प्राइस ऑफ गुड वाई को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड वाई से, हमें पता लग जाएगा गुड वाई पर कंज्यूमर कितना पैसा खर्च कर रहा है, यानी एक्सपेंडिचर ऑन अदर। फॉर एग्जांपल एप्पल्स हैं, उनका रेट जो है 100 रुपए पर किलो है, 100 रुपीज पर केजी। इफ यू बाय 5 kg ऑफ एप्पल्स, आप कितना खर्च करेंगे? 500 रुपीज। फाइंड आउट कैसे किया? यू मल्टीप्लाइड क्वांटिटी ऑफ एप्पल बाय द प्राइस ऑफ एप्पल्स। दैट इज क्लियर। तो Px Qx represents the expenditure on good X. Py Qy represents the expenditure on good Y. एक कंज्यूमर जितना पैसा गुड X पे खर्च कर रहा है प्लस जितना पैसा गुड Y पे खर्च कर रहा है वो इनकम के बराबर है। या हम कह सकते हैं ये कंज्यूमर ने जितना पैसा गुड X पे खर्च किया है और जितना पैसा गुड वाई पे खर्च किया है वो इनकम से कम भी हो सकता है। हमारे पास दो सिचुएशंस हैं कि कंज्यूमर जितना भी पैसा दोनों गुड्स पे खर्च करेगा वो इनकम के बराबर भी हो सकता है, इनकम से कम भी हो सकता है। अगर ऐसा दोनों केस है, यानी हम एक ऐसी परिस्थिति को समझे, ऐसी सिचुएशन को समझे जहां कंज्यूमर जो भी पैसा खर्च कर रहा है दोनों गुड्स पे या तो वो इनकम के बराबर है या वो इनकम से कम है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं बजट सेट। That is known as budget set. Now, what is the definition of budget set? So, budget set represents all those bundles. Bundles में आपको बता चुका हूँ. Any combination of two goods is known as bundle. यानी quantity of good X और quantity of good Y, इन दोनों को मिला देंगे तो we are having a bundle. तो budget set का मतलब क्या हुआ? Budget set का मतलब हुआ it represents all those bundles या combination of two goods on which the expenditure of consumer is either equal to his income or less than his income. तो अगर हम इक्वेशन कंबाइन करें, I will be having one equation that is Px Qx plus Py Qy less than or equal to m. So this is the equation of budget set. यानी budget set के अंदर वो सारे बंडल्स आएंगे जिस पर कंज्यूमर का जो पैसा खर्च हो रहा है वो उसकी इनकम के बराबर है या इनकम से कम है। You have to be very much clear about budget set. Now come to budget line. Budget line क्या है? Budget line represents all those bundles on which the expenditure of consumer is exactly equal to his income. जब कंज्यूमर का पूरा एक्सपेंडिचर उसकी इनकम के बराबर है उसको हम बोलते हैं बजट लाइन। तो इन दोनों में से या ये तीन इक्वेशन आपके सामने है, बजट लाइन की इक्वेशन कौन सी हुई? This one. So this is the equation of budget line. This is budget line. ये बजट लाइन की इक्वेशन यानी बजट लाइन वो सारे बंडल्स को शो करती है जिस पर कंज्यूमर की पूरी इनकम जस्ट की तस खर्च हो रही है। बजट सेट वो सारे बंडल्स को शो करता है जिस पर कंज्यूमर की पूरी इनकम भी खर्च हो सकती है, उससे कम भी खर्च हो सकता है। मान लो आपके पास 100 रुपए है, आप 100 के 100 रुपए खर्च करते हैं या 90 रुपए खर्च करते हैं, तो जो भी दो गुड्स के बंडल आएंगे, कॉम्बिनेशन आएंगे, वो बजट सेट में आएंगे। लेकिन अगर आपने 100 के 100 रुपए खर्च होंगे बंडल्स पे, वो बंडल्स किस पर आएंगे? वो आएंगे बजट लाइन पर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बजट लाइन एंड बजट सेट।
If you are able to find out the bundles of budget line, you can easily determine the bundles of budget set. How? Now एक एग्जांपल से समझाता हूँ. For example, आपका कोई गुड एक्स है और उस गुड एक्स का प्राइस है ₹10. एक दूसरा गुड है गुड वाई, उसका प्राइस है ₹20 पर केजी, दोनों केजी में है. और एक कंज्यूमर के पास मान लेते हैं इनकम है ₹80. अब ये बताइए कि इससे कंज्यूमर गुड एक्स की कितनी क्वांटिटी और गुड वाई की कितनी क्वांटिटी बाय कर पाएगा. तो हम दिमाग लगाएं, हम सोचें कि अगर वो 1 यूनिट गुड एक्स की बाय करता है तो ₹10 खर्च हो जाएंगे. उसके बाद कितने पैसे बचे? ₹70. अब ₹70 से गुड वाई कितना आएगा? इजी है कि अगर हम दिमाग भी लगाएं या हम इक्वेशन यूज कर लें तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. इक्वेशन है px qx plus py qy is equal to m. px you know 10 plus py you know 20 qy and m you know 80. इसको साफ कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है. Now 20 qy, क्योंकि मैं अज्यूम करूंगा x की वैल्यू को 80 minus 10 qx and qy 80 minus 10 qx upon 20 qy. We can easily find out how. We can make table in a quantity of x in a quantity of y. I'll be starting with 0. मैंने quantity of x को उधर क्यों ले गया? क्योंकि मैं qx को अज्यूम करने वाला हूं. इसको मैं 0 अज्यूम करता हूं. 10 into 0 0. 80 में से 0 गया 80. सॉरी, ये यहां है. qy इधर है, 20 नीचे आएगा. Now 80 upon 20 will be getting 4 units. यानी कंज्यूमर के पूरे पैसे जो गुड वाई है उस पर खर्च हो गए. ₹20 का एक है, ₹80 से 4 रुपए. सपोज 1 यूनिट में बाय करता हूं गुड एक्स की. 1 यूनिट ₹10 की है, कंज्यूमर पे 80 में से 10 के 70 3.5. तो हम गुड वाई ले पाएंगे केवल 3.5 किलो. If a consumer plans to buy 2 units of good X, 10 into 20, 2, 20, 80 में से 20 गया 60, 60 by 20, that is 3. मैं 3 लेता हूं यहां, तो ये रह जाएगा 2.5. ये 4, ये 2, ये 5, ये 1.5. पुट करके देख लीजिए. 10 into 5 50, 80 में से 50 गया 30, 30 by 20 is 1.5. और आगे बढ़ जाते हैं. 6, 10 into 6 60, 80 में से 60 गया 20, 20 by 20 1, 7 0.5, 8 0. ये सारे वो बंडल्स आ गए जो कंज्यूमर अपनी इनकम से खरीद सकता है. डिफरेंट कॉम्बिनेशन. इस पे भी पूरे ₹80 खर्च हो रहे हैं कंज्यूमर के. इस पे भी ₹80 पूरे खर्च हो रहे हैं. इस पे भी ₹80. मान लो ये आपका आलू है और ये प्याज है. मान लेते हैं जो गुड एक्स है वो आलू है और ये प्याज है. पोटैटो एंड ऑनियन. पोटैटोस जो है हमारे 10 रुपीज पर केजी है और ऑनियन जो है 20 रुपीज पर केजी है. 80 रुपीज आपके पास है. आपसे बोला जाए कि आप कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन पोटैटोस एंड ऑनियन के बाय कर पाएंगे. यू कैन बाय दीज मेनी कॉम्बिनेशन. इसके अलावा और भी हो सकते हैं. इसके अलावा और भी हो सकते हैं. ये मैंने पूरा होल नंबर में लिया है, ये ऑटोमेटिकली डिटरमाइन किया. नाउ दीज बंडल्स आर नोन एज बंडल्स ऑफ बजट लाइन. क्यों बजट लाइन के बंडल्स हैं? क्योंकि इन पे कंज्यूमर का पूरा पैसा खर्च हो रहा है. अगर मुझे ड्रॉ करनी हो बजट लाइन तो मैं क्या करूंगा? मैं एक लूंगा एक्स एक्सिस, एक लूंगा वाई एक्सिस, ऑरिजिन और क्वांटिटी दोनों किलो में है. तो यहां जो मेरा गुड वाई है, यहां गुड एक्स आएगा और यहां मेरा गुड वाई आएगा. दोनों की जो क्वांटिटी है किलो में है तो दोनों की यूनिट्स भी सेम होगी. 1 किलो, 2 किलो, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ भी 1 kg, 2, 3, 4. अब देखिए क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स 0 है तो ये वाई कितना है
क्वांटिटी ऑफ गुड x 1 है, इट इज 3.5. दिस इज 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. द डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये 1 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग 1 kg. तो यूनिट सेम है तो डिस्टेंस भी सेम रहेगा. If 2 kg 1 kg 3.5, 2 kg 3 kg 2.5, 4 kg 2, 5 kg 1.5, look 0 है तो 4 kg, 1 है तो 3.5, 2 है तो 3, 3 है तो 2.5, 4 है तो 2, 5 1.5, 6 1 7.5. You'll be getting a budget line this shape. पॉइंट नहीं मिल रहे हैं बिकॉज इसके टेढ़ा हो गया, बट बजट लाइन विल बी अ स्ट्रेट लाइन. तो बजट लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन होगी. थोड़ा सा मैं बड़ा कर इसको बनाता हूं. इफ ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4. This is good y and this is good x. 0 good x की यूनिट्स हैं y 4, 1 है 3.5, 2 है 3, 3 है 2.5, 4 2, 5 तो 5 है 1.5. उसके बाद 1.5, 5 है 1.5, 1 है 6 and 7 है 0.5, 0. Now if you join all these points, you will be getting a budget line. You have seen budget line is a straight line on which the bundles which are shown, the expenditure of consumer is exactly equal to his income. If you are asked to find out the bundles of budget set, कि budget set के bundles क्या होंगे? देखिए 0.4 है, 0.3 एक बंडल, 0.2 दूसरा बंडल, 0.1 you are having these bundles. या 80 रुपीस खर्च हो रहे हैं, या 60 या 40 और यहाँ खर्च हो रहे हैं 20 रुपीस. 1.35 है तो we can say 1 into 3, 1 into 2, 1.25. इससे एक बंडल काम करते हैं, इसको कांस्टेंट रख के you will be getting all the bundles of budget set. It is very to find out the bundles of budget line and budget set. I think it is very clear. Now, after studying budget line and budget set, I told you how to draw this budget line. But this is a difficult method, क्योंकि हमारे अकाउंट्स के पेपर में हमें कभी भी बंडल से बजट लाइन ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगी. We are having one more way to draw this budget line. How? We can use horizontal intercept and vertical intercept. Horizontal intercept. Horizontal intercept का मतलब है कि जब कंज्यूमर अपनी पूरी की पूरी इनकम गुड वन पे खर्च करते हैं, पूरी की पूरी इनकम गुड वन पे खर्च होगी, जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट. फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 80 रुपए और गुड एक्स का प्राइस है 10 रुपए, आपको मिलेंगे 8 यूनिट्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टिकल इंटरसेप्ट? अगर कंज्यूमर अपनी पूरी की पूरी इनकम गुड वाई पे खर्च करते हैं 80/20 तो उसको मिलेंगे 4 यूनिट्स. नाउ यू ड्रॉ
x axis and y axis origin 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 horizontal intercept, this is good x, this is good y. horizontal intercept की वैल्यू कितनी है 8, मार्क 8. vertical intercept की वैल्यू कितनी है 4, मार्क 4. join horizontal intercept and vertical intercept, you will be getting a budget line. so budget line draw करना ये थोड़ा difficult matter है because you have to draw all the bundles. यहाँ कोई bundles निकालने की जरूरत नहीं है. You can only find out the value of horizontal intercept and the value of vertical intercept. You can determine all the values. तो what I have told you, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है कि बजट सेट क्या है, बजट लाइन क्या है. अभी जो बजट लाइन है, कंज्यूमर इसके ऊपर कोई भी बंडल नहीं सकता, इसके अंदर भी खरीद सकता है, इसके बाहर नहीं जाता. इसलिए इसको बोलते हैं बजट कॉन्स्टेंट. बजट कॉन्स्टेंट, इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं. तो जो बजट कांस्टेंट है, कंज्यूमर इसके बाहर नहीं आ सकता, इसके अंदर वो खर्च कर सकता है. अगर इसके किसी भी पॉइंट पे रहे, इसके अंदर चला जाए तो हम बोलेंगे बजट सेट. केवल इसी के ऊपर रहे तो बोलेंगे बजट लाइन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्लोप ऑफ बजट लाइन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? जो हम बोलते हैं स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है? देखिए स्लोप का मतलब है चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल. कि एक कुछ चेंज होने से दूसरे में जो चेंज हो रहा है दैट इज स्लोप. यहां पर क्या हो रहा है, यहां हम ये बात कर लेते हैं. देखिए यहां से हम मूव किए, हम जब यहां से यहां गए, यहां से थोड़ा नीचे आ गए, पहले कंज्यूमर इस पॉइंट पर है, इधर पहुंच गए, यहां से यहां पहुंच गए. ये जो चेंज हुआ है, क्या हुआ, जैसे ही हम यहां से यहां इंक्रीज हुए, यहाँ कंज्यूमर इस पॉइंट पे था, यहाँ पहुंच गया, यानी बेसिकली यहाँ पहुंच गया. तो इतना इंक्रीज होने में, x की कुछ क्वांटिटी में चेंज होने में y पे कुछ चेंज आ गया. फॉर एग्जांपल और आगे बढ़ते हैं. फिर कंज्यूमर नेक्स्ट केस में जब हमने फिर क्वांटिटी बढ़ाई उसे गुड x की, तो क्वांटिटी गुड y की कुछ कम होगी. यानी गुड x की क्वांटिटी में कुछ चेंज होने से गुड y की क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है दैट इज नोन एज स्लोप. इन केस ऑफ बजट लाइन स्लोप क्या है? once again come to the schedule which I prepared for you. ये जो स्लोप है ये क्या है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन? स्लोप जानना बहुत जरूरी है. मैंने आपको बताया था इक्वेशन लगा था px qx plus py qy is equal to n. We'll be changing the data ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाए. मैं मान लेता हूं ये 4 रुपीस का है x, ये 5 रुपीस का है y, और इनकम ले लेते हैं 20 रुपीस कंज्यूमर की. अब हमें तो शेड्यूल बनाना है जिसमें क्वांटिटी ऑफ गुड x है, क्वांटिटी ऑफ गुड y, प्राइस ऑफ गुड x 4, क्वांटिटी qx, प्राइस ऑफ गुड y 5, qy, m is 20. 5 qy is equal to 20 minus 4 qx. And quantity of good y can be determined by using this equation upon 5. I will draw a table. qx and qy. If I assume कि कुछ नहीं कर रहे 0, तो 4, 1 ले रहे हैं, 15 बचा 3, 2 ले रहे हैं, 2 4 8, अगर 1 लिया तो 4 बचा तो 16, 16 means 20 में 16 लिया. अगर कंज्यूमर ने 1 यूनिट ली, 1 4 4, 20 में से 4 गया 16, 16 upon 5 3.2. अगर कंज्यूमर गुड x की 1 यूनिट बाय करेगा तो उसके 4 रुपए खर्च हो गए. 20 में से 4 गए 16 रुपए कंज्यूमर के पास है. गुड y 5 रुपए का है, कितने यूनिट्स आएंगे 3.2. अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 4 8 12 बचा 2.4. 3 ले लेते हैं, 3 4 12 8 बचा 1.6. 4 4 16, 4 by 5 is 0.8, और
5 लिया, 5 for that 20 0. You see कि जब भी कंज्यूमर गुड एक्स की अमाउंट बढ़ा रहा है तो उसे गुड वाई की अमाउंट कम करनी पड़ रही है. What is the reason? Whenever the consumer is increasing the quantity of good X, he has to reduce the quantity of good Y. Why? Because the income is limited. Income 20 रुपए है. अगर उससे आपने पहले 0 यूनिट ऑफ गुड X बाय कर ली और 4 यूनिट्स ऑफ गुड Y खरीद लिए, अगर आप गुड X बढ़ाएंगे डेफिनेटली यू हैव टू रिड्यूस गुड Y. तो जैसे जैसे X की परचेज बढ़ेगी वी हैव टू रिड्यूस द परचेज ऑफ गुड Y. तो मार्केट में अगर आप आलू और प्याज लेने गए हैं और आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने कोई भी कॉम्बिनेशन बाय कर लिया, अगर आप एक गुड की भी किसी भी यूनिट को बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड की यूनिट को आपको कम करना ही पड़ेगा. तो जिस अमाउंट से कम कर रहे हैं दैट इज नोन एज स्लोप ऑफ बजट लाइन. आगे आप ये स्लोप ऑफ बजट लाइन. बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? तो बजट लाइन का स्लोप होता है कि किसी गुड की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड की जितने भी यूनिट्स को कम किया जाए उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन. अब यहां देखिए 0 से 1 गुड एक्स की यूनिट बढ़ानी थी, गुड वाई के यूनिट्स को कम किया 0.8. अगेन आपने 1 से 2 पर पहुंचे, कितने यूनिट्स को कम कर दिया 0.8. फिर यहां पहुंचे, फिर कम कर दिया 0.8. एवरी टाइम यू आर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ गुड वाई बाय 0.8 यूनिट्स. आप हर बार गुड वाई की यूनिट को 0.8 से कम करते जा रहे हैं जब भी गुड एक्स की एक एक यूनिट को बढ़ा रहे हैं. दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ बजट लाइन. वी कैन राइट लाइक दिस कि क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स में एक यूनिट का चेंज होने से क्वांटिटी ऑफ गुड वाई में जो भी चेंज हो रहा है हमेशा स्लोप ऐसे, जो पहला चेंज आएगा वो नीचे और जो दूसरा चेंज आ रहा है, यानी दिस इज इंडिपेंडेंट एंड दिस इज डिपेंडेंट. चेंज इन गुड वाई डिपेंड्स ऑन चेंज इन गुड एक्स. गुड एक्स को नीचे रखा, उसकी वैल्यू है 0 से 1, 1 से 2, 1. हर बार कितने का चेंज है 0.8. तो स्लोप बजट लाइन क्या है कि गुड एक्स की यूनिट में इंक्रीज करने से गुड वाई की क्वांटिटी में जितना भी डिक्रीज होगा उसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ बजट लाइन. एंड ये किसके बराबर होता है? मैं इसको साफ करता हूं यहां से. जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है यानी